धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Gaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा हेडिंग, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हैप्पी होली मैं बोलूंगी या होली की शुभकामनाएं। अब तक तो सब होली की बहुत शुभकामनाएं सबको। I read something today which is very disturbing. मैंने आज पढ़ा कि एक बंदा है जोनाथन लार्सन, उस बंदे ने एक सबस्टैक पे आर्टिकल लिखा, US troops were told Iran war is Armageddon and return of Jesus. I'm like what? Jesus? पहली बात तो जीसस मतलब anyway, no comments on religion, on any religion, but I just want to, the man wrote, and it's part of the eschatology. Okay, so there is one on Saturday morning, more than 110 complaints were filed in every branch of the US military, lodged by Military Religious Freedom Foundation, MRFF. Okay, they say that at around 30 bases, complaints came from more than 40 different units across 30 military installations in the United States and abroad, where they say that they are indoctrinating the American troops. Okay? That Iran war is a part of God's plan, and President Donald Trump was anointed by Jesus to light the signal fire in Iran to cause Armageddon and mark his return to earth. Okay. Now, one of the complainants themselves, non-commissioned officer in a recent unit outside the Iran combat zone, but ready to support. They said that they were Christians. These are mails made by the Christians themselves, their families. Okay, these complaints have been made. The Pentagon has not responded to these mails. जगह जगह कवर हुआ है इसका. It's not only this one blog. It has been covered in Clash Report. It has been covered in various other online digital magazines में, digital news portals में ये news cover हुई है. ये कोई conspiracy थोड़ी नहीं है, ये fact है. ठीक है. वो ये कह रहे हैं, जिसमें जो कंप्लेन करने वाले थे उसमें से they were on behalf of 15 troops including 11 Christians, 1 Muslim and 1 Jew. Okay? तो ये भी नहीं है कि किसी एक सक्का बंदा कंप्लेंट कर रहा है. 15 बंदों ने कंप्लेंट करी है. अब ये बढ़ के बड़ी हो चुकी. अब पीटर हेगसेट जो आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं ट्रंप के, उन्होंने इवेंजेलिस्ट क्रिश्चियनिटी को अपर मोस्ट लेवल पे यूएस मिलिट्री को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है. ये आई एम रीडिंग फ्रॉम दैट पेपर, बाय द वे, मेरा नहीं है. मैं मतलब टू ऑल पीपल हु आर लिसनिंग एंड थिंकिंग आप कहां से एट्रीब्यूट करें, वो सबस्टैक पे आर्टिकल है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं. ठीक है. During monthly prayer meetings throughout the Pentagon confirmed the Hegseth attends weekly White House Bible study. It is led by a preacher who said God commands America to support Israel. चर्चिफिकेशन हो गया इन शॉर्ट, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो. हाँ, ठीक है. And
अगर मैं उस ईमेल उसमें उन्होंने लास्ट में उसने बहुत लंबा चौड़ा है. Some Christians, ठीक है, as I revealed, Hexet sponsored the weekly Bible study. Some Christians claim the biblical prophecy requires Israel to exist for Jesus for return, but Hexet Bible study leader preacher Ralph Drollinger teaches that the reason to support Israel is the God still blesses Israel's allies and curses Israel's enemies. And even though Israel, XYZ, मैं आगे और नहीं बोलूंगा. After Israel's attack on Iran last year, Doringer dedicated 2 weeks of lessons to preaching support for Israel. His lessons went out to White House cabinet ministers, member of the Congress, even as Israel too was lobbying for the US engagement. चर्च की आर्मी बन गई है यूएस की आर्मी और इजराइल को बनाने निकले हैं. ट्रंप जीसस बन गए हैं और चर्च को मतलब चर्च अब बचाने उतर पड़ा है इजराइल को. अगर मैं हिंदी में इसका the confluence of Judeo-Christian faith. Simple, खत्म. ठीक है, let's not even go to one church. ठीक है, ये ईमेल है जो 2 मार्च 2026 की. अब मैं उसके कंटेंट पढ़ता जो ईमेल एड्रेस है. ये बहुत लोगों ने, ये मेरी टाइमलाइन पे भी है, सब जगह आपको मिल जाएगी. ठीक है, बहुत लोगों ने शेयर किया इसके बारे में. यहाँ तक कि वहां के अमेरिकन क्रिश्चियन ये कह रहे कि सर पकड़ ले, कह रहे ये क्या कर रहे हो तुम. ठीक है, तो वो कह रहे this morning our commander opened up the combat readiness status briefing by urging us not to be afraid of what is happening with our combat operations in Iran right now. He urged us to tell our troops that this was all part of God's divine plan, and he specifically referred to numerous citations to the book of Revelation, referring to the Armageddon and the imminent return of Jesus Christ. He said that the President Trump has been anointed by Jesus Christ to light the signal of fire in Iran to cause Armageddon and his return to earth. He made a big grin on his face while he was said, but this message means even more crazy. ये नहीं है, आपके पीटर थील है जो एक टेक लिबर्टेरियन है. मेरे को चक्कर आ रहा है, मुझे सर घूम रहा है. कहाँ से ये सेकुलर कंट्री, ऑल रिलीजन कंट्री, और वहां से ये किस साइड जा रहे हैं. ठीक है, एग्जैक्टली. ठीक है, उसके बाद ये आपका पीटर थील है. उन्होंने लास्ट ईयर लेक्चर लिए कि कैसे एंटी क्राइस्ट आने वाला है और बैटल ऑफ आर्मागेडन आ रही है. एमएसएन न्यूज के आगे पता लगा कि स्टीवन विटकॉफ और जारेड कुशनर जैसे बंदे जो नेगोशिएट कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहाफ पे ओमान में ईरान के साथ, he lied to the president कि Iranians are about to create 11 nuclear bombs in next 1 week. And a source says that it was a falsehood told by Stephen Witkoff, which accelerated the launch of this war. Basically, both the people they had decided with a preconditioned mind उनको इस war में जाना है. कि जो पिछले जून में जो वॉर रुक गई थी, ठीक है, 12 दिन की वॉर, वो आधी अधूरी रह गई थी, उसको इस बार पूरा करना है. दिस इज द बेस्ट चांस एंड वी डू नॉट वांट टू गो अवे. रिजीम को खत्म करने का, ईरान की रिजीम को खत्म करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है. ये मैं नहीं, ये लिंजी ग्रैहम बोल रहा है, बार बार राष्ट्रपति को बोल रहा है ट्रंप को कि भैया ये मौका है ईरान की रिजीम गिराने का, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला. अगर इस बार रिजीम बच गई तो आगे जाके दिक्कत. इन्होंने पूरा का पूरा जमावड़ा किया. इन्होंने बातचीत का ढोंग रचा ओमान में. उस ढोंग में इन्होंने ईरानियंस को बेवकूफ बनाया कि देखो हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन ये सर्व कर रहे थे इजरायली इंटरेस्ट को. मैं नहीं बोल रहा, ये रूबियो ने बोला है. रूबियो ने ओपनली टीवी पे आके बोला कि भाई इजराइल तो जाने ही वाला था, और उसको जो है उसके खिलाफ ईरान रिप्लाई करता तो हमने उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए अपना प्रिएम्प्ट कर दिया. प्रिएम्प्ट का प्रिएम्प्ट, दिस काइंड ऑफ लॉजिक. एंड देन बेसिकली रूबियो मेंट कि ये वॉर इजराइल चाहता है, उसने शुरू करी, और डोनाल्ड ट्रंप हैड नो ऑप्शन बट टू फॉलो इट. ठीक है, अब ये मैं नहीं बोल रहा, टकर कार्लसन बोल रहा है, विच इज कॉल्ड कतर टाल्सन एज वेल. आजकल उसका नया नाम पड़ गया कि वो कतर द्वारा फंडेड है. ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा,
ये मेगन केली बोल रही है कि ये इजराइल की वॉर है, ये हमारी वॉर तो है नहीं, व्हाई शुड यूएस सोल्जर्स डाई इन दिस। ठीक है, हमारा क्या, हम यूएस हजारों मील दूर, हम यूएस हजारों मील पैसे दूर ले बैठ, हाँ, हर ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए पैसे लेता है, तो लड़ेगा कौन? लड़ेंगे भी तो यही ना। एग्जैक्टली। जब आप फंडिंग लेते हो ऐसे लोगों से और आप लोगों को ये चीजें करनी है, तो आपको तो जो लड़ना ही पड़ेगा। और एप्स्टीन फाइल में तो आपका नाम है, एप्स्टीन फाइल में तो नाम है आपका। और आप, एक तो एफबीआई, एप्स्टीन फाइल में एक एफबीआई का वॉल्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि टर्म 1 में डोनाल्ड ट्रंप वाज कॉम्प्रोमाइज बाय मोसाद। मैं नहीं बोल रहा, एफबीआई की फाइल है, खोलो पढ़ो जाके उसमें, सारे के सारे पढ़ो उसमें जाके। और उसमें नीचे लिखा हुआ है जैरेड कुशनर की फैमिली के जरिए, सन इन लॉ के जरिए वो इजराइल से लिंक्ड है, पूरा का पूरा एजेंडा फुलफिल होता है। तो फिर तो बचा क्या? आर दे गुड ब्रोकर्स, आर दे गुड नेगोशिएटर्स? नो, यू हैव अ प्री कंसीव बायस कि आपने एक साइड को फेवर करना है। आप ओमान में नेगोशिएट कर रहे हो, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। द Iranians even agreed to zero enrichment at Oman, as per Omani foreign minister who was on TV. बट नहीं, इनको ठोकना था अंदर जाके। ठोकना किस लिए था? ठोकना एक्चुअल रीजन इसलिए था, एक्चुअल रीजन क्या है कि उनको लगता है कि इजराइल के व्यू से उनको परमानेंट डोमिनेंस चाहिए रीजन में। ईरान इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर जो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस का है। ठीक है, क्योंकि ईरान का नेटवर्क है लेबनान में, सीरिया में, हिजबुल्लाह का, शिया मिलिशियास का, हुतीज में, यमन का। तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है हमारे लिए, इसको निकालना जरूरी है। वी नीड टू रीशेप द मिडिल ईस्ट। और आप जितना भी युद्ध 7 अक्टूबर 2023 के बाद, हमास के ब्रूटल मैसेकर के बाद चल रहा है, बारी 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 आपको एक सटल प्लान दिखता है कि वो एक प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। जहां पे उन्होंने पहले 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 गाजा को समतल किया, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह नासर अल्लाह को मारा। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है कि वो सही है। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी ग्रुप है, मैं मानता हूँ। हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, मैं मानता हूँ। वो मैसेकर बहुत बेकार था, मैं मानता हूँ। मैं उसको बिल्कुल नहीं, हम लोग उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स पे आज नहीं जा रहे। हम जस्ट डिकोडिंग द स्ट्रैटेजी स्टेट ऑफ इजराइल ने उसको फॉलो करी, that they went after Gaza, Hamas in Gaza, they went after Hezbollah in Lebanon, Shia crescent, Shia militias in Syria, then they deposed Assad को हटाया और अहमद अल शरा को राष्ट्रपति बनाया सीरिया में। ठीक है, अब उनका जब उनका ये मेन, जब शिया क्रिसेंट और जब वो शिया मिलिशिया कमजोर हो गए, ईरान के पैरामिलिट्री विंग्स कमजोर हो गए, उनको लगा कि अब मौका आ गया कि रियल बंदे पे चढ़ाई की है, और वो है ईरान। पिछले साल करीब 12 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया, क्योंकि पिछले इनसे गलती हुई कि इनकी जब पूरी टेलीविजन में जो मार पड़ी ना ईरानियन मिसाइल से, वो लाइव टेलीकास्ट हो गई। दैट स्पॉइल्ड द होल थिंग आउट, क्योंकि नैरेटिव नहीं कंट्रोल कर पाए ना। उसके बाद नैरेटिव कंट्रोल करना किसी युद्ध में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज वेरी एसेंशियल। और इस बार इन्होंने पूरा टेलीविजन में ब्लैकआउट कर रखा है इजराइल में कि कुछ भी लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, कोई इमेजेस बाहर नहीं जाएंगे। कोई कैमरामैन जो जाता है, चाहे वो चाइनीज का हो, चाहे वो CNN टर्की का हो, उनका कैमरा साइट पर रख दिया जाता है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि ईरानी मिसाइल कहां गिर रही है और क्या हो रहा है। और वही चीज कुछ हद तक दुबई ने भी फॉलो करा कि दुबई में जहां जहां हिट्स हो रहे हैं, आप उसको लाइव टेलीकास्ट नहीं करोगे। प्लीज मेक श्योर ना कितने इंटरसेप्शन हो रहे हैं, कितने ड्रोन आ रहे हैं, बिकॉज इजराइल क्यों छुपाना चाह रहे हैं? इजराइल क्यों छुपाना चाह रहे हैं इन सारे उसको? इनफैक्ट दुबई में भी ये हुआ गया कि फाइन लग गया कि अगर कोई रिकॉर्डिंग्स करेगा इन बॉम्बिंग्स की एंड एग्जैक्टली द पॉइंट। एग्जैक्टली, आप समझे नहीं। दे वांट टू जस्ट पुट द नैरेटिव आउट कि देखो ईरान में कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, बाकी कुछ हो ही नहीं। छुपाएंगे कैसे? सबके पास फोन है। बट रिमूव कौन करेगा? सोशल मीडिया का इन्फोर्सर कौन है? इजराइल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओनर्स तो होंगे। नो द टेक मोगल, द टेक बिलियनियर्स, वो कहां बैठते हैं? अमेरिका। यस, तो वो यूएस फॉरेन पॉलिसी के हिसाब पे चलेंगे। यूएस, आई नॉट इवन लिंकिंग देम टू इजराइल। वो यूएस फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है कि आपको दैट ऑल दैट कंटेंट व्हिच डैमेजेस अस,
should be removed, should not be allowed, should be suspended. ऑलरेडी आप एल्गोरिदम्स को चेंज कर दो ट्विटर पर सारी जगह, तो वो कंटेंट आपको दिखेगा ही नहीं. तो छुपाना चाह रहे हैं, मतलब मीडिया. एक चीज आपने नोटिस की थी नवरूप जी, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था, नोबडी वाज टेलिंग. इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया की भी बात करूंगी तो आवर्स वाज वन ऑफ द आई थिंक फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स जिसने ये दिखाना शुरू किया था कि इजराइल की पिटाई हो रही है, यूएस की पिटाई हो रही है. आई एम देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ईरान में जो स्ट्राइक्स हो रही है खतरनाक है. B2, B5 जो B52 जो बॉम्बर की जो स्ट्राइक हो रही है, B1 बड़ा, इट इज ब्रूटल, इट इज ब्रूटल. तेहरान और आसपास ब्रूटल हो रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि वहां कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनके रिटेलिएशन में आपके यहाँ भी बहुत नुकसान है, वो तो दिखा दो. वॉर में क्या बराबरी तो दिखाओ कि भाई एग्जैक्टली बराबर बराबर दिखाओ. लेट द व्यूअर जज ना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. आपने नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए एक साइड को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया कि हम दिखाएंगे ही नहीं. कहते हैं ना, द विनर्स कंट्रोल द नैरेटिव और राइट द हिस्ट्री, या हिस्ट्री को, इतिहास को उल्टे तरीके से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि एक साइड का नैरेटिव रहे, दूसरे का व्हाइट वॉश हो जाए. लेकिन इस मामले में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लग रहा है जो चल रहा है ये, लेकिन दूसरे बदले में ईरानियन तो चाइनीज ने अपनी अलग गेम खेली हुई है. जहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे है, वो टेलीग्राम चैनल्स के जरिए, बाकी चीजों के जरिए. अच्छा क्या होता है, जैसे यूएस की शिपमेंट मूव करती है, चाइनीज का इंटेलिजेंस शिप जो है घूम रहा है हॉर्मुज के पास, और वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है. जैसे ही किसी यूएस बेस में कई जगह लगती है तो चाइनीज के सैटेलाइट फोटो खींचते हैं और वो जो है थ्रू टेलीग्राम चैनल और बाकी न्यूट्रल सोशल मीडिया साइट पर रिलीज कर देते हैं. कर लो जो करना है, कर लो जो करना है. यू कांट स्टॉप द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अब You अमेरिका के लिए यू कांट, अमेरिका के लिए ये सिरदर्दी बन गया, क्योंकि पहले ही 48 घंटे में बगदाद पे एम्बेसी पे हिट हो रहा है, दुबई पे हिट हो रहा है, पोर्ट जा रहे हैं, रिफाइनरीज जा रही हैं, बेसिस उड़ रहे हैं तुम्हारे, एरबिल से लेके कतर से लेके दोहा से लेके पूरा, मतलब जगह जगह वो छोटे छोटे ड्रोन ईरान के, जो सुसाइडल ड्रोन जो है, कामिकाज़ी ड्रोन, वो उड़ते घूम घूम करते हुए उड़ते हैं, जाके गिर जाते हैं. और हुआ क्या, मैं नहीं, अब ये फॉक्स न्यूज की बाइट है, इसमें वो कह रहे हैं कि हमने सारा का सारा जो पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है मैक्सिमम इजराइल को दे दिएगा, दुबई वालों को दिया ही नहीं, सऊदीज को दिया ही नहीं, मतलब कम लगाया बहुत, 20% के आसपास. एक थार्ड लगा दिया, एक पैट्रियट लगा दिया, ऐसे लगा के छोड़ दिया उनको. और जब ईरान के ड्रोन आए, स्वॉर्म ड्रोन आए और बैलिस्टिक मिसाइल आई, तो कहते ये तो मर गए, हम हमारे पास डिफेंड करने को नहीं. फिर वहां पर जब हिट्स हुए तो वहां पर कभी कभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिट हो रहा है, कभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे हिट हो रहा है, कभी बगदाद एयरपोर्ट पे हिट हो रहा है. और वो क्या हुआ कि कभी कभी कुवैत एयरपोर्ट की टर्मिनल तोड़ दिया गया पूरा का पूरा. अभी सब ईरान के द्वारा जब ये सारी चीजें हो रही, तो सारे कह रहे यार हमारा का क्या हुआ, आर वी यूएस अलाइज और नॉट, और ओनली एवरीथिंग विल गो टू इजराइल. वो गल्फ स्टेट से पूछा. फिर यूएस घबराया, फिर उन्होंने जाके साउथ कोरिया और जापान से सारे थार्ड और पेट्रियट मंगवाए यहाँ लगाने के लिए. बताओ साउथ कोरिया से मंगवा रहे हैं, क्योंकि साल में खाली 800 पेट्रियट मिसाइल बनाते हैं. मतलब ये नौबत आ गई कि साउथ कोरिया से मंगवाना पड़ रहा है. इमेजिन, अरे नॉर्थ कोरिया से आदमी आ लेते, वो ढेर सारी भेज देते हैं. फ्रांस से मंगवा रहे हैं जी, फ्रांस से मंगवा रहे हैं. आधा क्योंकि आधा स्लैश ने यूक्रेन भेजा, दे डिड नॉट रियलाइज, दे अंडर एस्टिमेटेड द इरानियन रेजिस्टेंस. इनको लगा खमेनी को उड़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, वो खत्म हुआ नहीं, उल्टा वो स्ट्रांग हो गया. दे डबल डाउन ऑन देयर मिशन. दे उनका जो रिजॉल्व है वो डबल डाउन हो गई. बिल्कुल बिल्कुल. द पॉइंट इज दिस वॉर इज अननेसेसरी. इस वॉर की कोई जरूरत नहीं थी, कोई थ्रेट नहीं था. मैं नहीं बोल रहा, ये पेंटागन बोल रहा है. पेंटागन ने जाके कांग्रेस में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जाके बोला है कि कोई थ्रेट था ही नहीं ईरान से. ये कह रहा है ईरान वॉज नॉट क्लोज टू अ न्यूक्लियर वेपन, विटकॉफ झूठ बोल रहा है. सारी जस्टिफिकेशन तो खत्म हो चुकी, फिर किस लिए लड़ रहे हो भाई. फिर कल डोनाल्ड ट्रंप बता कि आर्मी खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म होगा. अरे भाई खत्म हो गया तो बमबारी क्यों कर रहा है, बंद कर दे, चला जाएगा वापस.
क्योंकि you have no excuse left. You have to just bomb it out. What is that ideology? What is that drivel in their mind to kill and to do this kind of nonsense and put the whole world in peril? And why the whole world is in peril? Because Iranians, मैं उनको सुन रहा था, कर्नल जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी, सॉरी, ठीक है, he was on TV and he was, उन्होंने बहुत लोगों की अच्छी तरीके से, मैंने जनरल दीपक से कहते हैं कि मैंने इतने सारे गुजारे हैं, कहते यू डोंट एलिमिनेट द होल लीडरशिप। क्या हिटलर को आपने पहली स्ट्राइक में मारा, या जापानीज एम्परर को आपने मारा टोक्यो में बॉम्ब गिरा के वर्ल्ड वॉर 2 में? नहीं मारा। आपने हिरोशिमा बॉम्ब जो है हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया, टोक्यो में नहीं गिराया जहां पे जापानीज एम्परर बैठता था। क्यों? बिकॉज यू नीडेड टू नेगोशिएट अ सरेंडर। Ultimately, there must be leadership. Leadership रहेगी तभी तो बातचीत करोगे ना। किससे बात करोगे आप? खमैनी आकर बैठा हुआ है वहां पे बातचीत करा, पूरी लीडरशिप वाइप आउट कर दो। उन्होंने 3 दिन पहले 31 डिस्ट्रिक्ट्स में ईरान के हर डिस्ट्रिक्ट में कमांडर लेवल पे 5-5 लेवल का डेलीगेशन कर दिया है कि अगर एक मरा तो दूसरा वाला मारता रहेगा, दूसरा मरा तीसरा वाला मारता रहेगा। With this kind of distributive leadership, it is difficult to defeat that state. They will engage you non-stop. And now they have no incentive. They have no incentive to surrender or negotiate. तो मना कर दिया। बचा क्या है? उन्होंने सारे हथियार तो यूज कर लिया, आपके टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया, जिससे बैठ के आप एक टेबल के ऊपर नेगोशिएट कर सकते थे। करेक्ट। और आज जो उनका जो खमैनी का बेटे को जिसको उन्होंने नया खमैनी डिक्लेयर किया है, वो खमैनी से भी ज्यादा रेडिकल है। क्या मिला पकड़ के आपको? अमेजिंग। यू हैव डन अ सेल्फ गोल। और खमैनी का फतवा था कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए। He was the one who stopped the IRGC from acquiring nuclear weapon. You have removed that leadership who was moderating it. Now this state is in control of army generals who are radicals and they will go mad at you. You have now actually created the battle, the पूरा का पूरा अपने atmosphere, a battle of end times और Armageddon का आपने खड़ा कर दिया है। और जिसका end इसको पता नहीं कहाँ जाएगा। अब ईरानियंस ने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, वो दे है बैलिस्टिक मिसाइल, दे है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इजरायलीज कह रहे कि यार कोई नई मिसाइल आई है इनके पास, जहां से 1 से 5-5, 10-10 वॉरेट निकल रहे हैं, क्लस्टर म्यूनिशन। ये कहां से आ गया इनके पास? एंड दे आर रनिंग लो ऑन इंटरसेप्टर्स। खाली 1 हफ्ते के इंटरसेप्टर बचे हैं गल्फ स्टेट्स के पास। इसको बोलते हैं आ बैल मुझे मार। गल्फ स्टेट की इकोनॉमी सत्यानाश। इसका और कुछ सारे कहते हैं कि भाई अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, यार आप लोग जो है नहीं, मेरे को नवरूप जी सी आई डोंट थिंक सो कि मोसाद की इंटेलिजेंस इतनी वीक हो सकती है कि दे डोंट नो द काइंड ऑफ वेपन्स एंड आर्सेनल। हियर मी आउट आर्सेनल और वेपन्स जो आईआरजीसी के पास होंगे या खमेनी के पास होंगे, इतना वीक तो नहीं हो सकता है। दे ऑलरेडी न्यू इट। I think there's another purpose which is being kept under the garb. जैसे अनियन होता है ना, एक के बाद एक छिलका उतारते जाते हैं, right? तब मैं उसी पे आ रहा हूँ। Game is something else. There's something else. मैं उसी पे आ रहा हूँ। Now, what is the geopolitical objective of this post-war? Let's discuss that. जैसा आपने कहा ना, अनियन की पील उतारते हैं। इजराइल का तो हमने पर्सपेक्टिव समझ लिया कि उसको बहुत बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो उसकी हेजीमनी जो बनाना चाहता है, वो ठीक है। उसको लगता है इजराइल फील्स की खमैनी और ईरान इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू स्टेट ऑफ इजराइल एंड जूद। और वो फैक्ट भी है। हिजबुल्लाह और हमास के जो स्लोगन्स थे, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, वो जो बातें होती हैं, जो उन्होंने हमले करवाए हैं, जो पूरा वायलेंस जो मिडिल ईस्ट में चलता आ रहा है, बहुत हद तक ईरानियन स्पॉन्सर्ड है। वी अग्री। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल को थ्रेट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो इजराइल की वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप बीच में कहां से आ गया? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों आया? अमेरिका क्यों मगा बेस हमें बताता है कि दिस इज वी शुड डू अमेरिका फर्स्ट। वी हैव गॉट नथिंग टू डू दिस विद दिस वॉर। दिस इज इजराइल्स वॉर।
नोबेल है, पीस प्राइज लेने वाले थे। मुझे लगता है ये ओबामा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जल्दी तोड़ने वाला है ये बंदा। बहुत ठीक है। जल्दी। एंड देन वो आपकी बात सही है, लेकिन आप ये देखो, लेकिन मगा बेस ना आपको आधा सच बताता है, मगा बेस आपको पूरा सच नहीं बताता है। बहुत ये अमेरिका फर्स्ट वाले जो बंदे हैं ना यूएस में, जो आए हैं नए वाले, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये आधा सच बोलते हैं। आपने वेनेजुएला में किस लिए तख्ता पलट कर आया मदुरो के साथ? चाइना को वार करने के लिए, ऑयल। ऑयल के लिए। ऑयल, चाइना 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 को वो युआन में ऑयल बेच रहा था। आपने पैनामा कैनाल में आर्बिट्रेशन के जरिए किसको बाहर निकाला है? चाइना। चाइना। आप ग्रीनलैंड में क्यों ऑक्यूपाई करना चाहते हो? AI and that entire establishment of that thing, चाइना। and रेयर अर्थ, China. रेयर Rare अर्थ earth and China. Rare एंड earths and चाइना। China. आपने क्यूबा में क्यों ब्लॉकेट कर रखा है? मैसिव ब्लॉकेट China. किया हुआ, भूखमरी चाइना। अब आप ईरान में क्यों घुस रहे हो? China, चाइना। obviously. यस 25% China oil. यस, चाइना का 18% ऑयल ईरान से जाता है। उसका BRI प्रोजेक्ट है, वो युआन में तेल बेच रहा है, डॉलर में नहीं बेच रहा है उसे। और उसने BRI का जो 400 बिलियन डॉलर, मतलब 400 बिलियन डॉलर का 25 साल का प्रोजेक्ट इनके साथ अग्रीमेंट साइन कर दिया, 2021 था। और ईरान उसके पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये है रियल कारण वॉर का, where they want to flip Iran to the US camp, do a regime change, and isolate China, start cutting China's arteries across the world. Because they feel CCP is existential threat to the American empire. Or rather, the Anglo-Saxon establishment, the banking elite which runs the Western financial system. क्योंकि हैन आइडियोलॉजी में, मिंग डायनेस्टी में ये है कि चाइनीज एम्परर इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उनकी भी अलग आइडियोलॉजी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, चाइना में ट्रिब्यूटरी सिस्टम भी था, जहां पे चाइनीज एम्परर मेन था। आसपास के पड़ोसी देश आके उनको ट्रिब्यूट देते थे, उनके बदले में चाइनीज एम्परर उनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस देता था। और चाइना को ओपियम वॉर में जो अंग्रेजों ने मारा, जो शेम करा, जो बर्बादी की, ओपियम वॉर 1, ओपियम वॉर 2 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ नैनकिंग, ओपियम वॉर 2 में फ्रांस और ब्रिटेन ने जाके जो समर पैलेस का रेड किया बीजिंग में जाके, जो कत्लेआम इन्होंने मचाया बैठ के वहां पे, अमेरिकन ने भी लूटा, रशियंस ने भी लूटा, जापानीज ने भी लूटा इन लोगों को, अंदर किंग डायनेस्टी और द मांचू डायनेस्टी। They have not forgotten that. वो कह रहे उस 100 साल का हम बदला लेंगे आपसे, सेंचुरी ऑफ शेम। और उन्होंने अपने आप को इंटरनली फायरवॉल कर लिया, इंटरनली AI, ऑटोमेशन, चिप, सेमीकंडक्टर्स, उन्होंने इंटरनली अपने आप को रोबोटिक्स, उन्होंने अपने आप को सोलर पावर, उन्होंने आपको सेल्फ सफिशिएंट, फार्मास्यूटिकल्स, रेयर अर्थ, उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्रियल जायंट के तौर पे बिल्ड किया है पिछले 30-40 साल में, विद वन विजन दैट वी हैव टू अवेंज दैट सेंचुरी ऑफ शेम फ्रॉम दीज पीपल. This very elite which ruined China because of the opium wars. And those elite are nothing but the banking elite which even ruled India during East India Company. हाँ, the East India Company and its officers were involved in the entire opium trade. In fact, उन्होंने ही तो start किया था। टाटास को भी तो वही लेकर आए थे initially. Exactly. Initially, That is from where? जहाँ से टाटास ने that is part of the book. बहुत documented है, ये openly documented है, और बहुत सारे families involved हैं. I will not comment upon anyone, ठीक है? But ये टाटा वाला मुझे थोड़ा काट देना, but you don't put the names out of any group, ठीक है? अरे ओपन सोर्स में काट क्यों? ठीक है, ओके, चलो, ओके. So now you know, so ये जो पूरा का पूरा उनको लगा कि ये पूरा सिस्टम खड़ा हो गया, तो नाउ यू वांट टू ब्रिंग द चाइनीज हेजेमनी डाउन और द इंक्रीजिंग चाइनीज पेयर डाउन.
हाउ डू यू डू दैट? तो क्या किसिंजर को नहीं पता था या निक्सन को नहीं पता था when they were making China big they they manufacturing hub? they expected कि China, the more it grows, it will become a developed country and it will become like us. No, I think they wanted to become a colony जहाँ पे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कराएं, गंद फेंके, अपना पूरा गार्बेज निकाल दें, प्लास्टिक गार्बेज, ये गार्बेज, वो वो भी गार्बेज, था, केमिकल्स। वो भी था, but the Chinese had other mind, other plans, जो उन्होंने बताया नहीं। चाइनीज की सबसे बड़ी बात यह, आपको मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। मैंडरिन में हर ठीक, मैंडरिन में हर बात के दो मीनिंग है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। माइक पिल्सबरी की किताब है 100 Year Marathon। ये माइक पिल्सबरी जो थे CIA ऑफिसर थे, और इन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प को टर्म 1 में एक एडवाइजर थे चाइना को लेके, ठीक है। जब ये CIA स्टेशन में वहां पे चाइना में बेस्ड थे, तो इन्होंने उसके बाद वापस आने के बाद इन्होंने वहां पे US एम्बेसी से वापस आने के बाद इन्होंने पूरा का पूरा बुक लिखी, 100 Year Marathon, where he documented the whole detail कि how Chinese want to avenge the century of shame। और वो 100 साल के ब्लूप्रिंट से चल रहे हैं। इन 2049 विल CCP अपने 100 साल बनाएगी पावर में आने के, ठीक है। और उसको मनाने के लिए वो कह रहे कि मैं अपने राष्ट्रपतियों को बोल बोल के थक गया ना, 80s में 90s में, तो कि तुम क्या कर रहे हो, ये वो सुनने को तैयार नहीं था। उसने यहां तक बोला कि जब निक्सन आया था किसिंगर के साथ माओ से मिलने, तो वहां पे बात हुई, तो माओ बोलता है, माओ ने एक बात बोला, बा, तो इन्होंने बोला कि जो ट्रांसलेटर से निक्सन ने पूछा, ये इसका मतलब क्या है? कहते हैं, ये बोलते यू आर द ग्रेट किंग, ठीक है। कहते बाद में जब मैंने किसी और ट्रांसलेटर से पूछा, उन्होंने बोला बा का एक और मीनिंग है जिसका मतलब है डेविल, ठीक है। So he said the Americans were foolish to not decode। जो CCP 1954 के पंचशील अग्रीमेंट जो नेहरू के साथ साइन किया था, जिसमें यह लिखा गया था कि नॉन एग्रेशन, ये वो, नॉन वायलेंस, ये वो, और विच वाज एन अग्रीमेंट कि हम आपस में बात करेंगे और हम किसी इंपीरियलिस्ट पावर को डिक्टेट नहीं करेंगे, उसी अग्रीमेंट को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके निक्सन माओ वाले अग्रीमेंट पर डाल दिया। क्या? हाँ, बेसिक प्रिंसिपल वही है। गुड। मतलब एंटी इंपीरियलिस्ट को तोड़ मोड़ के उसी में लगा दिया। दिस इज हाउ दे कैमोफ्लेज एंड दे फूल यू। कैमोफ्लेज का इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन दे मैरी ऑल द बिलियनियर एंड द जायंट्स ऑफ चाइना, दे स्लीप अराउंड एंड दे डू एवरी काइंड ऑफ एस्पियोनेज फॉर चाइना। सो इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता है, क्योंकि वुमेन इज द लास्ट रिसोर्ट इन एनी सोसाइटी एंड दे यूज देम एज देयर फर्स्ट रिसोर्ट आज की डेट में। So now when they want to take down Iran, they want to take it down because of they want to take down the China's arteries or China's energy supply line, isolate it. And they also have other thing, but इसमें दिक्कत क्या होगी कि वो IRGC फनाटिक फोर्स की तरह बन गई जो लड़ना चाहती है। अब इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको रिजीम का तख्ता पलट करना है, आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे। आप बूट्स ऑन ग्राउंड डालोगे, वो डेथनेल है, क्योंकि वहां पे दो माउंटेन रेंज है, ऐसे और ऐसे, और नीचे यहाँ पे डेजर्ट है। वहां पे आपको गुरिल्ला वॉरफेयर में वो लोग घुसा के आपका मिंस मीट कर देंगे, कीमा जिसको बोलते हैं हिंदी में। एग्जैक्टली। आई डोंट वांट टू यूज होली का दिन था, इसलिए मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोला उससे, ठीक है। ठीक है, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप नोज, मतलब उनके इन्फ्लुएंसर, मैं नहीं, ये बैनन ने कल रात को बोला है, जो शो विद बैनन आता है, वो पूछ रहा है कि भाई टेलीविजन का हाल क्या होगा। टेलीविजन का बहुत बुरा हाल है, पिछली बार से भी बुरा हाल है। नेतन्याहू बता नहीं रहा, वीडियो है बैनन का, मेरा नहीं है। अमेरिका में बैठे पॉडकास्टर बैनन, हु द क्लोज एलाय ऑफ राष्ट्रपति ट्रंप, मगा टीम का, वो वीडियो डाल रहे हैं कि इसराइल का बुरा हाल है अंदर, लेकिन नेतन्याहू बता नहीं रहा है। सेंसरशिप है पूरी। तो इसका मतलब नुकसान हो रहा है।
आप बताओगे कि नुकसान थोड़ी ना, ये थोड़ी कि नहीं हो रहा है। नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने तब तक आपने क्या किया, फिर आपने बोला आप, एक बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा आया कि कतर ने जाके ईरान पे स्ट्राइक कर दी है। कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हम डिनाई करते हैं, वी आर नॉट अ पार्टी टू दिस वॉर एंड वी विल नॉट एंटर दिस वॉर। फिर उन्होंने बोला कि सऊदी अरेबिया बहुत जल्दी अटैक करने वाला है। सऊदीज की एम्बेसी जो वाशिंगटन में है कहते हैं ये खबर झूठी है, हम 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 कोई इसमें नहीं आने वाले हैं। फिर बोला यूएई करने वाला है, यूएई कहता है मेरा वहां तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये आप दोनों का और ईरान का मामला है, हम बिना मतलब के टारगेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये खबरें प्लांट कौन कर रहा है और ये क्यों हो रही है। आपने बूट्स ऑन ग्राउंड का नाम लिया तो एक न्यूज और आ रही है कि कुर्द वाले हाँ, रीजन में दे आ आर रहा बीइंग उसी पे आ रहा उसी पे आ रहा मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, नाउ यू हैव अ सिचुएशन जहां पे आपका डिकैपिटेशन स्ट्राइक टू डिलिमिनेट द लीडरशिप ताकि ईरान क्रम्बल कर जाएगा, वो हुआ नहीं, आयात जैसी लग पड़ी। ठीक है, दे आर हार्डन्ड मिलिशियाज, लाखों 5 से 6 लाख की आर्मी है इंक्लूडिंग शिया मिलिशिया। 14वीं सदी से इनके अंदर शहादत की वो है कि हम आखिरी आखिरी टाइम तक लड़ेंगे। आप समझो तो सही, किससे जाके सिविलाइजेशनल स्टेटस किससे लड़ रहे हो जाके। ठीक है, बट एनीवेज चलो, ऊपर से आपने उनके टॉप इमाम या रिलीजियस लीडर को मारा है, तो वहां पे जिहाद के नारे शुरू हो गए कि अमेरिका के खिलाफ को, और पब्लिक जो है राधा स्ट्रीट्स में आकर रैली कर रही है अयादीसी के साथ। और उल्टा आपने बहरीन में मुसीबत खड़ी कर दी, बिकॉज बहरीन की जो शिया जनता है वो बाहर आ गई। सुन्नी इसमें एक सुन्नी रॉयल फैमिली सुन्नी रॉयल फैमिली के साथ बगदाद में सारे शिया बाहर आ गए, वो अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। लेबनान में रिवोल्ट चल रहा है। आपने क्या किया, आपने आपने पूरे मिडिल ईस्ट को कियोस में डाल दिया। बट जब आपने बोला अब, तो पहली स्ट्रैटेजी डिकैपिटेशन स्ट्राइक फेल्ड, इट्स अ डिजास्टर। नेक्स्ट आपने सोचा चलो हम कोशिश करते हैं कि हम जो है इन लोगों को भेजते हैं, शायद सऊदी हमारे साथ आ जाए लड़ ले, या यूएई लड़ ले, या कतर लड़ ले, वो भी लड़ने को तैयार नहीं हो रहे, वो भी फेल। क्या करो डोनाल्ड ट्रम्प जी, तख्ता पलट कैसे होगा। अब बुलाते हैं कुर्दियों को, कि कुर्दियों को आप पेशमर्गा फोर्सेस को इराक में महमूद बरजानी के अंदर बोलो कि भैया तुम जो हो जाके वहां पे ईरानियन को जाके वहां पे जाके करो, असला हम देंगे आपको, एयर कवर इजरायली एयरफोर्स देगी, और आप वहां जाके सिसेशनिस्ट मूवमेंट खड़ी कराओ और तख्ता पलट करो वेस्टर्न ईरान में, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में। लेकिन यहां भी दिक्कत है, इनकी भी पृष्ठभूमि है। यहाँ पे टर्की कहते हैं खबरदार ये किया तो टर्की 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 को कुर्दी स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि टर्की को पता है कि अगर ईरान में एक कुर्दी एरिया बना तो वो इराकी कुर्दी एरिया के साथ बन के एक अलग रीजन ही, एक अलग स्टेट ही बन जाएगा, और वो उसके लिए सिर दर्द हो जाएगा। और इजराइल जो है वो कुर्दियों को इस्तेमाल करना चाहता है अपने पर्पस के लिए। जेरूसलम पोस्ट में आर्टिकल छपे हैं कि maybe the Jewish state and the Kurds could act as allies। और आपको ये याद होगा आज से कुछ हफ्ते पहले जब अहमद अल शरा की आर्मी ने सीरिया में चढ़ाई करी थी कुर्दी एरियाज पे, नॉर्थ ईस्ट सीरिया पे और एसडीएफ पे, जिसपे अर्डोगन वाह 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 कर रहा था, तब इजरायली नाराज हो गए थे अमेरिका से। टॉम बैरक को गुस्सा दिखाया, बिकॉज टॉम बैरक ने जाके महमूद बरदानी को इरबिल में मीटिंग में बोला कि आप बहुत सारे हजारों सुन्नी जिहादिस्ट सीरिया में इकट्ठे हो चुके हैं, जोलानी के अंदर, अहमद अल शराक के अंदर, टर्किश और इंटरनेशनल जिहादिस्ट खड़े कर रखे उन्होंने। ठीक है, और एक्स आईसिस मेंबर्स भी हैं जिनको हमने जेल से आजाद करवाया, जो भागे हैं, जिसको अमेरिका उठा के इराक ले गया था ट्रांसपोर्ट करके। न्यूज है बाकायदा, इसका पढ़ लेना। ठीक है, तो आईसिस के मेंबर्स को सीरिया से निकाल के आप इराक ले गए। फिर इराक में आपने बोला कि देखो बहुत सारे हजारों, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ जिहादिस्ट, सुन्नी जिहादिस्ट हमने जो अमेरिका के पेरोल पे जो टर्की के पेरोल पे उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और फिर वो कुर्दियों को बोलते हैं तुम इनके साथ लड़ो,
इन जिहादियों के साथ ईरान के खिलाफ नॉर्दर्न एरियाज में। इसराइल को तो वैसे तो इसराइल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ईरान के पास अगला नंबर टर्की का है, तो टर्की हंसे रोए गाए पिए पीटे विलाप करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुर्द को अब करेंगे आप, बिकॉज दैट इज द लास्टेस्ट रिजॉर्ट दे आर कमिंग टू। ट्रू ट्रू ट्रू। अब आगे सुनो, आगे सुनो, सुनो सुनो। तो अब वो आर्म्स पहुंच गए और कुर्दी अगले कुछ दिनों में ये ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं, और ईरान ने ऑलरेडी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी है उस एरिया पे, इराक के अंदर। कुर्दियों ठीक है, के ऊपर। कुर्दियों के ऊपर। ठीक है कि भाई हम नहीं, ये हम नहीं अलाउ करेंगे, और अर्दोगान मना कर रहा है कि ये मैं नहीं अलाउ करूंगा। अर्दोगान फंस गया बीच में। अर्दोगान के बोलने से होता की है? अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। अब उसके बाद अगला फ्रंट जो खोल रहे हैं वो खोल रहे हैं बलोचियों का, साउथ में। नो दिस इज वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, प्लीज 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 एक्सप्लेन इन डिटेल। यस, हम पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, हाँ ठीक है। तो अब जैश लदल नाम का ग्रुप है जिसको हम जानदुला बोलते हैं। ठीक है, अब जैश लदल को इन लोगों ने रिक्रूट करा था मोसाद ने सीआईए एजेंट के भेस में 2007-8 में। मोसाद एजेंट्स inside Pakistan acted as CIA agents in a false identity, recruited Jandula terrorists to strike IRGC across the border in Sistan, Balochistan. आपकी आवाज? मैं कह रही हूँ वाह क्या बात है। आगे ये रिपोर्टेड है, फॉरेन पॉलिसी नाम की मैगजीन है, रिपोर्टेड। और जब ये खबर उस टाइम के राष्ट्रपति बुश एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली 7-8 में, वो दिल मिला उठे कि तुम सीआईए बन के ये काम कैसे कर रहे हो। उखाड़ क्या लोगे, पैसे तो उन्हीं से लिए थे। मैं वापस वहीं आ रही हूँ। सुनो सुनो, तो कह रहे कि हम प्लीज, हमारी पॉलिसी है कि हम ईरान की मिलिट्री को टारगेट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास कोई नेगोशिएशन कोई लीडरशिप होनी चाहिए बात करने के लिए। ये वही बुश थे जिन्होंने ईरान को एक्सिस ऑफ इविल डिक्लेयर किया था। उन्होंने भी ईरान पे चढ़ाई नहीं करी, उन्होंने खाली इराक पे चढ़ाई की। Because Iran had sensible leadership in Qasim Soleimani and other people, and Mohammad Zarif, Rouhani, all these prime ministers and presidents, जो बात करती थी, ये वो sensible engineers, medical students, पढ़े लिखे, मतलब अच्छे, मतलब Iran had a very educated elite, अभी भी है, ठीक है? So they were sophisticated, वो बात करते थे, बाकी मिडिल ईस्ट की तरह नहीं है वो। अब बलोचिस्तान में अब आप स्ट्राइक्स देखो। अब ये बलोचिस्तान में स्ट्राइक हो रही है। आज उन्होंने किया स्ट्राइक इसराइल ने, अमेरिकन ने एक एयर स्ट्रिप उड़ाई है, और इसराइल जो है कुर्दी इलाकों में स्ट्राइक कर रहा है। ओके, यहां से आर्म सप्लाई पाकिस्तान के जरिए आर्म सप्लाई जा रहे हैं बलोचियों को, और इराक के जरिए कुर्दियों को। आप सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स खड़ी करो और या बगावत करवाओ जितनी, क्योंकि ईरान में बहुत सारी कम्युनिटीज है, अजीरी है, अजरबैजानी है, शिया मेन है, कुछ जो राष्ट्रियंस भी हैं जो पुराने जो रह गए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, कुर्द हैं, बलोची हैं, ठीक है। इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी कम्युनिटीज, और बॉर्डर एरिया जो इस साइड पे कुर्द है इराक के साथ, और नीचे जो है पाकिस्तान के साथ बलोचिस्तान के साथ बलोची से। अब अगर यहां पे बगावत होगी बलोचिस्तान में कि हमें बलोचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए ईरान के बॉर्डर पे, जिसमें 6 बार पोर्ट भी आते हैं, ठीक है, पर्शियन गल्फ पे, तो फिर पाकिस्तान आपका क्या होगा? क्या पाकिस्तान में मांग नहीं उठेगी कि हमें भी बलोचिस्तान आबाद चाहिए? लग तो चांसेस उसी के रहे ज्यादा, बिकॉज जिस तरीके से चल रहा है पूरा उस एरिया का।
ऊपर से पश्तून कहेंगे हमें खैबर पख्तून चाहिए, हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते। तालिबान वो मार रहा है, अफगान तालिबान मार रहा है, टीटीपी मार रहा है, आईएसकेपी मार रहा है, अलकायदा अटैक करता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का तो वो घंटा बन गया, कोई आता बजा के चला जाता है। ठीक है, उसके बाद बलोच आपके बीएलए हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मजीद ब्रिगेड। ठीक है, और बी और बीएलए जो है, और उसके बाद अगर ईरान ईरान ब्लो आउट करता है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान आपके कितने फ्रंट संभालेगा? ऊपर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रॉब्लम है, ये पीओजेके में वहां पे रिवोल्ट चल रहा है आर्मी के खिलाफ। फिर उसके बाद सिंध और पंजाब आपस में कैनाल राइट्स को लेकर लड़ रहे हैं कि तो मेरा पानी नहीं दे रहा इंडस का। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर से इस टाइम पर अगर मैं बोलूं हालत खराब है, वर्चुअली फटी पड़ी है। दैट्स द वर्ड। और वो बार बार वो परेशान है कि यहाँ कि उधर अफगानी मार रहे हैं, अंदर के लोग मार रहे हैं, इमरान खान की पार्टी रिवोल्ट कर रही है, टीएलपी तमाशा कर रही है, पीओके में स्यापा चल रहा है, बलोचियों के साथ अलग तमाशा चल रहा है। यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर पूरा हॉट और एक्टिव है इस टाइम पे, क्योंकि इंडिया ने इस ऑपरेशन से दूध बंद नहीं करा है अभी तक जारी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनके अंदर से दिल की धड़कन जो है ना पूरी की पूरी धक 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 चल रही है कि क्या होगा नेक्स्ट टाइम। ऊपर से आए दिन वो ईरान जहर उगल रहे इसराइल के खिलाफ। एंड सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, जाके सऊदी अरब के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने के लिए, तो मिडिल ईस्ट में घुस गए। अब वो मांग रहे हैं भेजो ठीक है, भेजो बचाओ जाके उनको। ठीक है, फिर उसके बाद आप अब वो टर्की से भी बातचीत कर रहा है, और यूद बराक इजराइल का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो कहता है टर्की इज द नेक्स्ट ईरान। ठीक है, और पाकिस्तान इजराइल विल नॉट टॉलरेट एनी इस्लामिक स्टेट विद न्यूक्लियर वेपन, ये मैं लिख के दे दूं। पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन होना तय है और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट बनना तय है, ये दो बात याद रखिएगा। आप केपी के भूल गए हो, केपी के भी इनके हाथ से निकल रहा है। हाँ, वो पश्तून ले जाएंगे, आई एग्री। ठीक है, वो तालिब ले जाएंगे वहां से, आई एग्री फॉर दैट। ये याद रखना, जनरल मुनीर का टर्म पाकिस्तान के इतिहास में याद रखा जाए। जनरल मुनीर का टर्म पाकिस्तान के इतिहास में याद रखा जाएगा। जैसे जिया उल हक ने रेडिकलाइजेशन से पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश किया था, जिहाद में घुसा के एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले गए थे, और अल्टीमेटली बांग्लादेश वॉर हुआ, तमाशा हुआ। इसके बाद पाकिस्तान खंड विखंड बिखरेगा मुनीर की पॉलिसी के बाद। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप ईरान में अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड घुसाते हो तो आपकी दिक्कत है। आपके मिडिल ईस्टर्न अलाई लड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज वो अपनी इकोनॉमीज को बचाना चाहते हैं। दुबई का रियल एस्टेट है, टूरिज्म है, उस पर डिपेंड करता है, वो बर्बाद नहीं अपना आपको कर सकता। रियाद भी मॉडर्नाइज हो रहा है, वो भी सऊदी अरेबियन भी वो भी नहीं करना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं। कतरीज कहते हैं भैया मुझे गैस बेचनी है, मुझे तेल बेचना, मैं क्यों मरूं। लेकिन ईरान ने बोला मरेंगे तो अगर मैं मरूंगा तो सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ठीक है, और उसने बहुत चीज बोली, उसने हॉर्मूज रोक दिया। हॉर्मूज के रोकने से, हॉर्मूज के ब्लॉक करने से उसने वर्ल्ड का 25% ऑयल ब्लॉक किया, जिसमें उसने चाइनीज शिप को एग्जेम्पशन दे दी। ठीक है, और उसके बाद उसने हॉर्मूज में ऑयल ब्लॉक किया, हॉर्मूज से फर्टिलाइजर ब्लॉक हुआ, गैस रिफाइनरी जोड़ाई, ऑयल रिफाइनरी जोड़ाई, सब तोड़ ताड़ के बंद कर। यहाँ तक कि कतर की गैस, एल्यूमिनियम और यूरिया बंद है। दुबई की एक रिफाइनरी है वो उड़ा दी है, ऑयल रिफाइनिंग प्लांट भी उड़ा दिया है। ठीक है, सऊदी अरब की जो अरामको की रिफाइनरी को हिट किया है, जबकि डिनाई कर दिया कि हमने किया नहीं, बट किया तो है, वो तो बात अलग है। कहां से आए, हुती से आए कि तुमसे आए, तो हम जानते हैं। ठीक है, बट तेल बंद है, हॉर्मूज तेल बढ़ रहा है, $85 के आसपास है, 100 तक पहुंच जाएगा, जो हालत क्रूड की चल रही है। ठीक है,
क्रूड नहीं आ रहा, भारत सरकार कह रही है हमारे पास 50 दिन का क्रूड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इस युद्ध की, क्योंकि ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है, ये भी चल रहेगा। ट्रंप ने बोला है 4 हफ्ते मिनिमम, और इजराइल बोल रहा है पुरीम तक, पुरीम नहीं सॉरी पासओवर तक, सॉरी पुरीम तो आज है, पासओवर तक। पासओवर है जो इनका फेस्टिवल आता है, वो आता है अप्रैल मिड में, 14-15 अप्रैल के आसपास। मुझे उससे ज्यादा दिख रहा है, It doesn't look so close. आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो 1.5-2 महीना का तो लेके चलिए, 1.5-2 महीने में वर्ल्ड इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा, मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, तेल इतना महंगा हो जाएगा। अब इसमें स्टेबलाइज करने के लिए इसमें सबसे पहली कैजुअलिटी होगी गल्फ इकोनॉमीज। गल्फ इकोनॉमीज तबाह हो जाएगी, बिकॉज इमीडिएट नेबरहुड में मिसाइल चल रही है, ड्रोन चल रहे, कौन आएगा, कोई आएगा नहीं। एक बार इन्वेस्टर का विश्वास टूटा आपके ऊपर से, तो वो अपना पैसा विड्रॉ करके वहां से निकल जाएगा। ठीक है, ब्लैक रॉक एग्जाम्पल ऑलरेडी निकाल रहे हैं, वो अपना हेज करना शुरू कर देंगे। जो दुबई टैक्स फ्री नेशन है, सब कुछ है, वो खत्म हो गया। मतलब वो एक चार्म जो होता है ना, वो टूट जाता है, एक तिलिस्म जो होता है ना, वो टूट गया। ठीक है, दूसरा इसका सबसे बड़ा लॉस, ईरान तो समतल होगा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान बचने वाला है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ईरान जीतने वाला है। ईरान समतल होगा, लेकिन वो जाते जाते बाकी सबको लेके जाएगा। बट वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हमारे साथ ये होगा तो वो बाकियों को मैक्सिमम इन्फ्लेक्शन देकर जाएंगे। यस, वो तैयार है। पहले मेंटली पता है कि हम जमीन पर आ जाएंगे, पर उनको ये पता है कि हम बाकियों को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट, यूरोप के नेचुरल गैस के रेट 50% 60% बढ़ गए हैं। यूरोप की सारी गैस कतर से आती थी, आधी से गैस कतर से आती, कतर ने गैस बंद कर दी। यूरोप रशिया से तेल ले नहीं रहा, गैस ले नहीं रहा, और कतर से भी गैस बंद हो गई, अब खाली यूएस से थोड़ी बहुत गैस आती। अब क्या होगा बताइए यूरोपियंस को? अब यूरोपियंस के हाथ पांव फूल गए, क्या करें, गैस कहां से आएगी? क्योंकि वो उनके इलेक्ट्रिसिटी प्लांट सब कुछ गैस पे चलता है। और डू वी गो? अब यूरोपियंस क्या कर रहे हैं? वो जेलेंस्की को बोल रहे हैं यूक्रेन में, भाई जरा रशियन पाइपलाइन खोल दे, रशिया से तेल चाहिए और गैस चाहिए। आपकी आवाज खुल गई है, खुली नहीं है, अभी यूक्रेन ने खोला नहीं है, अभी खुला नहीं है। रशियन ने पहले बोला, रशियन बोल रहे पहले माफी मांगो। वो भी सही है, मौके पे चौका। चाहिए ना गैस, जिंदा रहना है ना, मांगो। खाना बनाना है ना, कुछ तो खाओगे ना, फ्रीजर का ही खाना खाओगे। एग्जैक्टली। और अब इंडिया ने बोला कि हमें रशियन ऑयल चाहिए, और इंडिया को रशियन ऑयल अब चाहिए क्योंकि बाकी यहाँ से ऑयल बंद हो गया, गल्फ का ऑयल बंद हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पे हॉर्मुज में ब्लॉकेड है। तो अब इंडिया रशिया से ऑयल मांगना चाहता है, जो रेड सी से घूम के आ रहा है, सुएज कैनाल से। तो अब वो रशिया, तभी अब इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने बंद नहीं किया था रशियन ऑयल, हमने कम किया था, अब हम कह रहे हैं हमें और चाहिए, और बढ़ा दो रशियन ऑयल। ठीक है, तो रशिया पता क्या कह रहा है, जी हाँ यानी आपको तो हम जरूर देंगे, आप तो हमारे एलाय हो, आपको हम गैस भी देंगे, आपको हम गैस भी देंगे और ऑयल भी देंगे, सब कुछ देंगे, आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। फर्टिलाइजर्स भी तैयार हो ही रहे हैं, फैक्ट्री लगी रही है। एग्जैक्टली। तो आप ये देखो, यू आर रिलेटिवली बेटर ऑफ। इंडिया में भी प्रॉब्लम आएगी गैस की, क्योंकि हमारी बहुत सारी गैस कतर से आती थी, जिन्होंने प्रोडक्शन रोक दी है, लेकिन वी विल स्टिल बी बेटर ऑफ। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज गई, यूरोप गया, वो कॉन्फ्लिक्ट में। अच्छा, अब अगर रशिया कमाएगा इस $80 $90 के क्रूड से, रशिया कमाएगा, तो रशिया उस पैसे को कहां यूज करेगा बताओ? यूक्रेन में आर्म्स खरीद के यूक्रेन में मारेगा, उठा के। ठीक है, यूक्रेन में और तेज होगी, जेलेंस्की की और लगने वाली है वहां पे। और यूरोप ने सारा, अमेरिका ने सारा असला डाइवर्ट करके मिडिल ईस्ट में लगा दिए। रशिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर। Yes, undoubtedly. Vladimir Putin is Destiny's Child, I can say that today.
कहीं ऐसा तो नहीं ट्रम्प के कान में आइडिया ये ट्रम्प पुतिन नहीं फूका हो कि भाई जब वहाँ वॉर कर ले, सब डाइवर्ट हो जाएगा, इधर से मेरा काम भी, उधर से तेरा काम भी। हाँ एग्जैक्टली, मैं वो नहीं कह रहा कि ये हुआ है, बट यू नो सिचुएशन ऐसी बन गई है। उल्टा या चाइना उल्टा चाइना कह रहा है कि मुझे मेरा ईरानियन ऑयल बंद हो जाएगा और मुझसे कमाएगा तो मैं भी रशियन ऑयल दूंगा। रशिया कह रहा है बिल्कुल दूंगा, आओ सबको दूंगा ऑयल में। रशिया के साथ भी यही हुआ था, चाइना ने यही किया था, हाँ, रिमेंबर? ठीक तो है। हाँ, रशिया इज प्लेइंग बैक इन द सेम कॉइन बाय द वे। जब हाँ, रशिया और हाँ, यूक्रेन हुआ था तो वेपन्स चाहिए थे एंड चाइना हैड प्लेड अ ट्रिक ड्यूरिंग दैट टाइम। कोरोना का फॉल आउट हुआ चाइना से था, बट रशिया के ऊपर भी कोरोना का फॉल आउट हुआ था और उस वक्त चाइना ने बाहें मरोड़ी थी रशिया की फॉर फूड एंड लॉट ठीक ऑफ है। अदर स्टफ खरीद रहे थे जी। तो हाँ अब रशिया ठीक है। पे कर रहा है। अब ठीक है, अब रशिया के पांचों हाथ घी में है। इंडिया से भी ऑयल गैस आएगी, यूरोप भी भीख मंगों की तरह वापस चला गया, फोन लगा रहा है दे दे भाई ऑयल गैस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चाइना भी कह रहा है कि मुझे अब ईरान का तेल तो मिल नहीं रहा भाई, तू दे दे तेल। ठीक है। ठीक है। तो और अच्छा करा, दे दूंगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ले लो मेरा तेल। मेरा तेल तो वैसे भी टैंकर में घूम रहा है, शैडो फ्लीट में उठा के तुम्हें भिजवा देता हूँ। ठीक है। और व्लादिवोस्टॉक रास्ते में और सस्ता पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। तो हम्म। तो अब ये टोटल नया नया का नया सिनारियो इमर्ज हुआ, लेकिन इसका इफेक्ट ट्रम्प पे भी आएगा। क्यों? अगर इन्फ्लेशन राइज किया और ये सब चीज होती है तो यूएस में फेडरल रिजर्व रेट कट नहीं करेगा। रेट कट नहीं करेगा तो एआई बबल पॉप हो जाएगा, बिकॉज उनको सस्ते दाम पे केपेक्स चाहिए और उनका डेट सस्ते दाम पे 8-9 ट्रिलियन का डेट रिन्यू होना है। अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए तो अमेरिका की लग जाएगी। $1 ट्रिलियन का खाली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये सर्विस कौन करने के महाशय, लिए। ये मैं थोड़ा मतलब ये आई डोंट अंडरस्टैंड इन व्हाट सेंस हैज डोनाल्ड ट्रम्प गॉन इनटू दिस। द सुसाइड एवरीवे, बॉडी बैग्स घर आएंगे अमेरिकन सोल्जर्स के, नुकसान होगा, बिलियंस का नुकसान होगा, 2 बिलियन का नुकसान हो चुका है 4 दिन में, इट्स पीनट्स फिल्म, और भी हो रहा है। इराक में उन्होंने कतर में उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा रडार स्टेशन ही उड़ा दिया है। रियाद की एम्बेसी में सीआईए बेस पे जाकर स्ट्राइक किया है। क्या है तुम्हारी सिक्योरिटी? सच अ बिग पावर कैन नॉट सिक्योर इट्स एम्बेसीज और इंटरेस्ट। करते हुए दुबई में ड्रोन आते घुस जाते तुम्हारे कॉन्सुलेट में। क्या यार, क्या हो तुम? दुनिया के सामने पूरा अपने झंडू बम बना लिया। हाँ, और अब क्या होगा कि अब वो मिड टर्म में जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कटेंगे नहीं, ये ड्रामा खत्म नहीं होगा, वो हारेगा मिड टर्म। मार्जरी टेलर ग्रीन, सारे सेनेटर, आज एक डेमोक्रेटिक सेनेटर कहता है मुझे क्लासिफाइड ब्रीफिंग में बताया गया, उस बंदे ने आके बाहर आके बोल दिया कि यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस करे कि हम इन ड्रोन्स को रोक नहीं सकते और अमेरिकन सोल्जर मरेंगे। एंड इसकी वजह से वो कह रहे कांग्रेस की ऑथराइजेशन नहीं है वॉर की, कहते दिस इज एन इलीगल एंड इमोरल वॉर व्हिच अमेरिका हैज लॉन्च्ड, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंसी हैज लॉन्च्ड अगेंस्ट ईरान। ये मेरे नहीं, ये यूएस सेनेटर के थे। दिस वॉर इज डिस्ट्रक्टिव। ये से ईरान समतल होगा, ईरान में इंसर्जेंसी आएगी, पूरा वेस्ट एशिया रीजन में केओस मचेगा, नक्शे बदलेंगे कंट्रीज के। ईरान स्प्लिट अप हो सकता है, नया कुर्दिश स्टेट बन सकता है, नया बलोची स्टेट बन सकता है, बहुत कुछ बदलेगा अगले कुछ सालों में। सीरिया वाला ब्लूप्रिंट फिर यहां इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी भी खत्म होगी, बलि चढ़ेगी। खत्म इन द सेंस कि वो मिड टर्म में हारेगा, डेमोक्रेट्स आएंगे और वो इसे इम्पीच करेंगे, इसको पर भी और एप्स्टीन फाइल्स को कर, एंड ही विल बिकम अ लेम डक प्रेसिडेंसी। इसका एक भी कानून पास नहीं होगा हाउस से। इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी करी इस वॉर में घुसने की, उनको पता है कि मैं मिड टर्म हार रहा हूं, मेरी पॉपुलैरिटी डूब रही है, तो मैं ये काम करी। So he's ensured his death, basically political death जिसको कहते हैं।
But doesn't matter, that's the last term है, he's not about to be elected. But there is another theory कि वो कि अगर यहाँ पे वॉर होती है, अमेरिकन सोल्जर्स मरते हैं कुछ नीचे ग्राउंड पे, he might ask कांग्रेस की मुझे ऑथराइज करो, इमरजेंसी पावर दो, और उस इमरजेंसी पावर में बोलेगा मैं मिड टर्म कराता हूँ पोस्टपोन. जिसके चांसेस बहुत कम है that they will agree for something like this. Yes. तो anyway, he is not fighting the next term. जो रूबियो और वांस लड़ना चाहते थे उनके लिए तो मुसीबत है. तभी तो वांस रूबियो ने बोला ना कि हम तो इजराइल के कहने पे घुसे हैं, ताकि कल को खड़ा होना पड़े, जनता को आंसर करना पड़े, बोलेगा हमने थोड़ी किया था, इजराइल ने बोला था करने के लिए. पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, बच्चे थोड़े ना हो कि उसने बोला कि भाई तू भी आ जा और तुम भी आ गए. इट्स नॉट अ स्ट्रीट फाइट. Exactly. So it is a lose-lose proposition. And everyone talks about, oh, young innocents are being killed. कल वो टेल अवीव में बॉम्ब गिरा तो कह रहे young innocents are being killed, बच्चे मर गए बिल्डिंग में. तो भैया 160 बच्चियां ईरान में नहीं मरी स्कूल पे जो आपने मारा है. वो 160 बच्चियां ना पूरी की पूरी ईरान को यूनाइट कर गई हैं, नो मैटर हाउ मच दे हेटेड खमीनी. Exactly. That's But correct. killing of those 160 innocent children, oh my God, they मतलब उन्होंने पोटेंशियल, इनफैक्ट देयर आर रिपोर्ट्स नाउ कि आईआरजीसी ने अपने यूएस के जितने भी स्लीपर सेल्स थे, इंटेलिजेंस सेल्स थे, एसेट्स से सबको एक्टिवेट कर दिया. आई वुडंट बी सरप्राइज अगर यूएस के अंदर ही अटैक हो जाए पैरेलली. Anything is possible now. You have created a mess. You created a. मैंने बोला ना, आपने इन टाइम्स की प्रोफेसी को वर्जन जिंदा कर दिया है. जरूरत नहीं थी इस वॉर को दुनिया की. इतना इतना इकोनॉमिक ट्रिलियंस का नुकसान होगा इन्वेस्टर्स का, मार्केट्स में सब जगह कंपनीज ब्लीड करेंगी, तेल नहीं मिलेगा, इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमी डूबेगी, वर्ल्ड ओवर रिसेशन आने वाला है. तो इसमें फायदा क्या है? डन कुछ नहीं. रिसेशन नो इसमें They सबसे don't बेस्ट care. इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी अगर मैं इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में? मैं तो उसमें बताना ही मुश्किल है. शेयर मार्केट से दूर ही है. उससे तो खैर हम वैसे भी दूर हैं, बट कॉमन नहीं. जैसे हम जैसे लोग हैं, नॉर्मल इंडियंस. Save your money, FD. If you can accumulate gold, अगर आपके बस में है तो. फिजिकल नॉट डिजिटल. आई नेवर से डिजिटल गोल्ड. हमारी जो पुरानी खानदानी विरासत है कि लेके हम रख लेते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट करते रहते. त्योहार आया, धनतेरस आया, दिवाली आई, किसी का शादी त्योहार आया, तो एक गिन्नी खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीदा. हम लोग अब एक्यूमुलेट करते रहते हैं. हमारे दादा परदादा ऐसे छोड़ गए हैं, पुरानी पीढ़ियां छोड़ गई हैं, वैसे ही एक्यूमुलेट करते जाइए. एंड देखिए वो कहीं जाता नहीं है. यू कैन जस्ट पास इट ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन जस्ट लाइक दैट. Exactly, that's an asset with. That's an asset. और जो समझदार हैं उनको इतना भी इशारा काफी है कि बैंक में भी रखने के लिए जरूरत नहीं है. आपको पता है कि कैसे रखना होता है. मतलब लोगों को डर लगता है ना बैंक में. देयर इज वन फैसिलिटी आई हैव हर्ड एंड आई वुड लाइक माय व्यूअर्स टू प्लीज कमेंट ऑन दैट. देयर इज समथिंग कॉल्ड बैंकिंग ओवरड्राफ्ट, गोल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. उसके ऊपर आप कमेंट करिएगा और अगर मुझे रिस्पॉन्स ठीक लगता है तो प्रॉब्ली आई विल गेट समबडी टू डू अ शो ऑन सेपरेटली ऑन दैट. क्योंकि लॉकर्स में भी रखने को लेकर नवरूप जी बहुत कवायद है कि रखना नहीं चाहिए. कल को चोरी हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसका क्या होगा. बिकॉज सी गोल्ड हैज बिकम वेरी वेरी प्रेशियस कमोडिटी नाउ. बहुत महंगा हो. I'll come back. So the point is, Gayatri ji, कि this is an unnecessary war which has been imposed on the world. जरूरत नहीं. Killing की, innocents की, मरने की, बच्चों की. I think there is something. I'm still, Navroop ji, I'm still feeling there is something which is probably all of us analysts are missing, and there is something more to it. There is some bigger agenda which is there, which probably will come out in next couple of days also. ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बड़े गधे और बेवकूफ हो सकते हैं कि आप बैल मुझे मार. It won't come out so easily. इसका मैंने हिंट स्टार्टिंग में इस पॉडकास्ट के दिया था. लोग थोड़ा और डिग करेंगे तो मिल जाएगा. रिलीजियस थ्योरी, एसोटेरिक, एस्ट्रोलॉजी, इनकी. when you are in that frame of mind going for a war, indoctrinated, then nothing works. No rational works.
ठीक है, थोड़ा लोग इसके बारे में और पढ़े, और वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो मैंने बताया आपको, रूबियो, मतलब रूबियो कह रहा हूँ, वो पेंटागन में जो उन्होंने जो ईमेल आई है कि वो अपने ट्रूप्स को इंडोक्ट्रिनेट कर रहे कि ट्रम्प जो है जीसस का भेजा हुआ आदमी है और आर्मागेडन की बैटल है। मुझे तो हंसी आई वो कहीं अपना सुन के। जैसे उधर अल्लाह के जो भेजे हुए मैसेंजर थे वो प्रॉफिट मोहम्मद थे, तो वो कहीं अपने आप को पैरेलली जीसस के भेजे हुए मैसेंजर तो नहीं साबित करने की कोशिश कर रहे आई अपने आप डोंट को? नो, आई डोंट नो गायत्री जी, मैं कुछ नहीं उस पर बोलूंगा कौन क्या है क्या नहीं है, बट दिस इज फनी। और ये आज नहीं है, इसके बारे में एक आर्टिकल है, इसमें मैंने भी अपने सबस्टैक पे लिखा था, अबाउट राइज ऑफ क्रिश्चियन नेशनलिज्म इन अमेरिका। चार्ली मागा कर्क का जब मांगा नहीं, चार्ली कर्क का जब असासिनेशन हुआ था, उसकी प्रेयर सर्विस की आप वीडियोस उठा के देखो, क्या क्या बोला गया उसके बारे में बताओ, आपको समझ में आएगा कि अमेरिका किस साइड जा रहा है। And this is not good. This is not healthy for the world. But what I feel bad is, for me, the main concern is that unnecessary war, which could have been talked about and negotiated with people, has been stretched, and innocence will die over. And cities and civilization and beautiful cities like Tehran will be crushed to rubble. That's the point. बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आज आपके लिए। इट्स अ वॉर बिटवीन, जो आपकी बातों से लग रहा है यू आर ट्राइंग टू से कि इट्स अ वॉर बिटवीन रिलीजन वर्सेस रिलीजन चल रहा है अब, बट हनिंगटन का जो था ना, क्लास ऑफ सिविलाइजेशंस, हाँ, हंटिंगटन, हाँ, हंटिंगटन वाला वही है। क्लैश ऑफ इट्स बिगन, सिविलाइजेशन। इट्स बिगन, और कुछ But नहीं but है। but the thing is that कि US is not a civilization, even though Iran is. They consider them as part of Judeo-Christian values. आप जाके जेडी वांस का या पीटर हेक्सेट, जेडी वांस ने जो जाके म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे बोला कि वेस्ट ने 500 साल तक राज किया, कॉलोनाइज किया, मिशनरीज भेजे, सब कुछ किया, और जुडो क्रिश्चियन फेथ को हमने आगे बढ़ाया। सडनली पिछले 20-30 साल में, 40-50 साल में वेस्ट अपने आप को रिट्रीट करना शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसकी वजह से बाकी सिविलाइजेशन जो हैं, बाकी स्पेसिफिकली ईस्ट में, alluding to CCP and other civilizations, वो जो है राइज करने लग गए। और अब वक्त आ गया है कि यूरोप और अमेरिका फिर दोबारा यूनाइट हो जाए और फिर वो इतिहास को दोबारा रचे। चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा। एग्जैक्टली, We'll be discussing the topic. एग्जैक्टली, Yeah. But it's getting एग्जैक्टली। very, very interesting. जाने से पहले special concession to all the researchers, scholars and students, 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, और स्कैन द QR कोड, ये डायरेक्टली आपको वेबसाइट के ऊपर लेकर जाएगा, वहाँ पे सभी पासेस और फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी, यू कैन राइट टू मी। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं और वो इस मुहिम में हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आगे आएँ, हमें सपोर्ट करें, हमें डोनेट करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।